السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد حسن، اور آپ دیکھ رہے ہیں مدرسہ ڈاٹ پی کے انتہائی مفید پروگرام مدرسہ انٹرویوز۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ علمی رسوخ کی ترویج کے لیے نمایاں علمی خدمات سر انجام دینے والی شخصیات کو آپ کے سامنے منظر عام پر لایا جاتا ہے، ان کی خدمات کو آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تاکہ ان کے تجربات، ان کی زندگی کے اندر گزرے ہوئے لمحات اور ان کی جو علمی خدمات ہیں ان سے ہم سب مستفید ہو سکیں۔ تو اس سلسلے میں آج جس شخصیت کو ہم اپنے سامنے لے کر آئے ہیں، تو یہ شخصیت ماشاءاللہ ایک تو ان کی جغرافیہ کے اوپر گہری نظر ہے، اور جامعۃ الرشید کے مایہ ناز استاد بھی ہیں، اور شریعہ اینڈ بزنس ایک جو رسالہ نکلتا ہے جامعۃ الرشید سے، ان کے ایڈیٹر بھی ہیں، اور جے ٹی آر میڈیا ہاؤس جامعۃ الرشید کا جو ایک بہت عظیم اور مشہور چینل اور پلیٹ فارم ہے، اس کے اسسٹنٹ پروفیسر، اسسٹنٹ ڈائریکٹر بھی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو جغرافیہ پہ ان کی نظر ہے، تو آج ہم ان سے جو جاننا چاہیں گے وہ فلسطین کا جو حالیہ، جو ایک آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسئلہ چل رہا ہے، بلکہ کئی عرصہ سے چل رہا ہے، لیکن اس کے اندر جو شدت آئی ہے وہ ابھی آپ کے سامنے ہے۔ تو یہ بھی ہم ان سے تاریخی اور سیاسی جغرافیہ کی روشنی میں جاننا چاہیں گے۔ ہمارے مہمان خصوصی ہیں آج مفتی عبد المنعم فائز صاحب، جن کا بنیادی طور پر تعلق آبائی علاقہ وہاڑی ملتان ہے، لیکن کئی عرصہ سے ماشاءاللہ جامعۃ الرشید کے اندر خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اور یہیں کراچی کے اندر ہی رہائش پذیر ہیں۔ تو ہم بڑھتے ہیں اپنے مہمان خصوصی کی طرف۔ مفتی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ بھائی مفتی محمد حسن صاحب، آپ کا آپ نے وقت نکالا۔ جزاکم اللہ خیر حضرت۔ مفتی صاحب، ماشاءاللہ ہم آپ کے سب سے پہلے ذاتی تعارف سے شروع کریں گے، کہ آپ کا علاقہ وہاڑی جیسے آپ فرما رہے تھے، تو آبائی علاقہ، اور پھر اس کے بعد آپ کی جو ابتدائی تعلیم چاہے دینی ہو یا عصری ہو، کیا وہ وہیں وہاڑی ملتان کے اندر ہی ہوئی، اور پھر کراچی کی طرف منتقلی کب ہوئی؟ اس حوالے سے تھوڑا سا ہمیں بتا دیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ بھائی حسن صاحب۔ جو ابتدائی تعلیم ہے ہماری وہ تو وہی بہاڑی سے ہی ہوئی ہے۔ بہاڑی میں جامع خالد بن ولید بہاڑی مشہور مدرسہ ہے پورے علاقے میں، اور حضرت مولانا ظفر احمد قاسم صاحب جن کا حال ہی میں انتقال ہوا ہے، تو ان کا قائم کردہ یہ مدرسہ ہے، اور اسی میں نے مکمل 10 سال تک درس نظامی کی تعلیم حاصل کی۔ وہاں تعلیم حاصل کرنے کے بعد پھر ہم تخصص کرنے کے لیے اور مفتی کا کورس کرنے کے لیے کراچی آئے تھے 2003 میں۔ تو تب سے کراچی آنا ہوا ہے 2003، اور پھر 4 میں ہم نے یہاں سے تخصص فی الفتاح کا کورس مکمل کیا ہے۔ 2005 میں پھر جامعۃ الرشید، اس سے پہلے جو میں نے تخصص فی الفتاح کیا وہ تو بنول ٹاؤن جامع علوم اسلامیہ بنول ٹاؤن سے ہم نے مکمل کیا۔ پھر 2005 میں جامعۃ الرشید آنا ہوا۔ جامعۃ الرشید نے ابتدائی طور پر 2 کورسز متعارف کروائے تھے، ایک جرنلزم کا کورس، دوسرا انگلش کا کورس۔ تو یہاں ہمیں ان دونوں کورسز میں پھر پڑھنے کا موقع ملا الحمدللہ۔ یہاں پہ پہلے 1 سال کا جو جرنلزم کورس یا صحافت کورس اس وقت کہلاتا تھا وہ ہم نے مکمل کیا، اور اس کے بعد پھر انگلش کورس دوسرا کورس تھا جس کو ہم نے پڑھا۔ تو اس طرح یہ 2 کورس مکمل کرنے کے بعد جامعۃ الرشید میں ہی خدمات ادا کرنے کا موقع ملا۔ اس وقت سے اب تک اللہ تعالیٰ نے جامعۃ الرشید سے وابستہ رکھا ہے، اور مختلف جو شعبے جن کا آپ نے ذکر بھی کیا، روزہ شریعہ اینڈ بزنس ہو گیا، جامعۃ الرشید میں تدریس کے پرائز ہو گئے، اس کے ساتھ ساتھ اب جے ٹی آر میڈیا ہاؤس ہے۔ تو ان 3-4 شعبوں میں مرکزی اور مین طور پر جو خدمات ہیں وہ ان 3-4 شعبوں میں ادا کرنے کا موقع ملا۔ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ اچھا، ہم یہ خدمات ضرور انشاءاللہ تفصیل سے آپ سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ شریعہ اینڈ بزنس کیا ہے، اور جے ٹی آر میڈیا ہاؤس کا آغاز کب سے ہوا، اور اب تک اس میں کیا کیا اس کے پروگرامات ہیں۔ لیکن اس سے پہلے آپ کی عصری تعلیم کا ہم جاننا چاہیں گے کہ اس کا آغاز اور کتنی وہ ہوئی، کہاں کہاں پہ آپ نے حاصل کی۔ جی عصری تعلیم جو ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ جاری رہی۔ جامع خالد بن ولید بہاڑی جو ہے وہ بھی ایک ایسا تعلیمی ادارہ ہے جس میں
दीनी तालीम के साथ-साथ असरी तालीम दी जाती है। तो वहाँ पे हमने जब दरस निज़ामी पढ़ा तो उसके साथ-साथ मैट्रिक वहीं कर ली। तो मैट्रिक के बाद जब हम कराची आना हुआ, जामिया रशीद से वाबस्तगी हुई, यहाँ पे पढ़ना हमने शुरू किया, तो उस दौरान फिर इसका शौक पैदा हुआ कि अपनी असली तालीम को दोबारा से जारी किया जाए। तो यहाँ से फिर हमने इंटर किया कराची से ही, कराची बोर्ड से, फिर यहाँ से ग्रेजुएशन की, बीए किया। इसके बाद फिर कराची यूनिवर्सिटी से जामिया रशीद के एफिलिएशन है कि जामिया रशीद का एक शोबा है, किम्स कराची इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंसेज़। तो उससे हमने फिर एमबीए फाइनेंस किया। तो एमबीए फाइनेंस करने के बाद फिर हमें एमफिल कराची यूनिवर्सिटी से करने का मौका मिला और अभी रिसेंटली इसी सेमेस्टर में कराची यूनिवर्सिटी में ही मेरा पीएचडी में अल्हम्दुलिल्लाह एडमिशन हो गया है। तो इस तरह इंशाल्लाह ये पीएचडी तक ये सफ़र जारी रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह पीएचडी आप किस शोबे में कर रहे हैं? ज़ाहिर है इस्लामिक स्टडीज़ के अंदर ही होगा? जी, जी, इस्लामिक स्टडीज़ में ही पहले मैंने एमफिल का जो थीसिस लिखा है वो तो एचआर से मुतालिक जो शरई मसाइल हैं उन पर लिखा है। अब पीएचडी का भी शुरू हुआ है तो आगे चल के इंशाल्लाह मैनेजमेंट और लीडरशिप इसी मौजू पर ही इरादा है कि आगे काम किया जाए और पीएचडी इनमें से किसी मौजू पर की जाए। बहुत खूब माशाअल्लाह जी। अच्छा मुफ्ती साहब शरिया एंड बिज़नेस का आपने ज़िक्र किया तो इस रिसाले का आगाज़ आपने कब से किया था और अब तक इसकी जो खिदमात हैं और इसका जो इम्पैक्ट है मार्केट में वो क्या है? जी, शरीयन बिज़नेस का आगाज़ अल्हम्दुलिल्लाह जनवरी 2013 से हमारे यहाँ हुआ और इसको अब से 11 साल तकरीबन मुकम्मल होने वाले इस जनवरी में इंशाल्लाह 11 साल मुकम्मल हो जाएँगे इसके। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस सारे अरसे के दौरान में कराची की जो बिज़नेस कम्युनिटी है वो हमसे जुड़ी हुई है और कराची के अलावा में जितनी भी मुल्क भर में ट्रेड बॉडीज़ हैं, ट्रेड एसोसिएशन हैं, ताजरों की बिज़नेस कम्युनिटी की मुख्तलिफ शोबाजात हैं, उनके मुख्तलिफ ट्रेड बॉडीज़ जो बनी हैं, उन तमाम में हमारी बड़ी-बड़ी कंपनियों में सब्सक्रिप्शन है। तो हमारा मकसद इस मैगज़ीन का ये था कि जो तिजारत से मुतालिक बड़ी सतह के मसाइल हैं, क्योंकि वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, मुश्किल भी होते हैं, उनको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में आगे स्टॉक एक्सचेंज में इस्लामी बैंकों के साथ या दूसरे बैंकों के साथ एक बड़े मुश्किल मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो इसका हदफ और मकसद यही था कि जो उस लेवल के ऊपर बड़ी टॉप टियर की सतह के ऊपर काम करने वाले लोग हैं, उनको फ़ोकस किया जाए, उनसे मुतालिक शरई मसाइल का हल पेश किया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब तक ये हर हफ्ते शाया होता है और पूरे मुल्क में इसकी सब्सक्रिप्शन है। पाकिस्तान से बाहर तकरीबन 7-8 मुल्कों में लोग इसको खरीदते हैं, हर हफ्ते पढ़ा जाता है। हालाँकि इस दौर के अंदर जब लीडरशिप बड़ी तेज़ी से गिरी है लेकिन इसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह इसकी लीडरशिप मौजूद है, लोग चाहते हैं और पाकिस्तान में जब ये मैगज़ीन हमने शुरू किया था 2013 में, तब उस वक़्त हमने सर्वे किया था तो हमें अंदाज़ा हुआ था कि पूरे पाकिस्तान में कोई एक भी ऐसा बिज़नेस मैगज़ीन मौजूद नहीं है, खुसूसन तिजारती शरई रहनुमाई करने वाला कोई भी मैगज़ीन अब तक नहीं है। तो उस वक़्त से लेकर अब तक में अल्हम्दुलिल्लाह तसल्सल के साथ शाया हो रहा है और एक बहुत बड़ा जो इल्म का ज़ख़ीरा है, वो इसके नतीजे में वजूद में आया है। हमने एक अंदाज़ा लगाया था उससे में तकरीबन जो 6000 के करीब इस्लामी बैंकिंग के ऊपर, मईशत के ऊपर, तिजारत पर, खुसूसन जो इस्लामी तर्ज़ तिजारत है, उसके ऊपर सहाबा-ए-किराम की तिजारत हो गई या इस्लाम का जो तिजारती पहलू है उस मौजू के ऊपर, फिर इस्लामी मैनेजमेंट पर, इस्लामिक लीडरशिप के ऊपर, हलाल फूड के मौजू पर, ये वो मौज़ूआत हैं जिनको अल्हम्दुलिल्लाह इस मैगज़ीन ने कवर किया और मैगज़ीन के जो लिखारी हज़रात हैं, जो टीम है हमारी, वो भी बड़ी कॉम्पिटेंट है। उन्होंने एमबीए किया हुआ है, साथ में मुफ्ती हैं, हलाल फूड में मुतख़स्सिस हैं और इस्लामिक फ़ाइनेंस में मुतख़स्सिस हैं। तो ये जो कंटेंट तैयार हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह उसकी बड़ी मांग भी इसी वजह से है। तो उसी का नतीजा है कि आज 11 साल होने वाले हैं और अभी तक ये मैगज़ीन हर हफ्ते शाया हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये बताइएगा मुफ्ती साहब कि क्या इसकी कोई सॉफ्ट कॉपी भी है होती है या इसका कोई अगर हम लिंक तलाश करना चाहें जो इसी इंटरव्यू की डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल सकें, तो क्या वो मिल सकेगा?
जो पुराना रिकॉर्ड हो या नया जो जी रिसाला बिल्कुल, अच्छा है। लिंक मौजूद है हमारी वेबसाइट। जी, हमारी जो वेबसाइट है shariainbiz.com के नाम से, वो वेबसाइट अवेलेबल है। उसके ऊपर आप इसको सर्च कर सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर हम हर वीक का मैगजीन तो अपलोड नहीं करते, लेकिन अहम अहम आर्टिकल्स उस पर अपलोड हो रहे होते हैं। हमारा फेसबुक पेज है शरिया एंड बिजनेस के नाम से, उसके ऊपर भी लोग हमें फॉलो कर रहे होते हैं। एक बड़ी तादाद वहाँ जुड़ी हुई है। अभी हमारा रिसेंटली इंशाल्लाह अगले हफ्ते से शुरू होने जा रहा है हमारा यूट्यूब चैनल। तो यूट्यूब चैनल पर भी हमारी जो बिजनेस से रिलेटेड वीडियोस हैं वो बहुत जल्द लोगों के सामने आ जाएंगे। बहुत खूब। जब यूट्यूब चैनल बन जाएगा तो उसका लिंक भी इसी इंटरव्यू की डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया जाएगा, और जो वेबसाइट है उसका लिंक भी दे दिया जाएगा, ताकि नाजरीन उस रिसाले से और उसके जो पुराना रिकॉर्ड है उससे भी मुस्तफ़ीद हो सकें, और हर नया आने वाला जो रिसाला है उसको भी वो देख सकें। अच्छा, हम बढ़ते हैं आपके दूसरे जो मेन शोबे की तरफ, जो आप माशाल्लाह जामिअतुर रशीद में उस्ताद हैं। तो किन किन शोबाजात के अंदर आप तदरीस के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं? जामिया रशीद में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 2008 से तदरीस शुरू की। उसके साथ साथ में जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि मैंने जामिया रशीद से जर्नलिज्म में 1 साल का कोर्स किया, इंग्लिश लैंग्वेज का 1 साल का कोर्स किया, और इसके बाद फिर जामिया रशीद से ही हलाल फूड में तखस्सुस करने का मौका मिला। और ये जो समझें कि जैसे ऑन जॉब ट्रेनिंग होती है उस तरह थी कि हम साथ में तदरीस भी चल रही थी, और साथ में हमने हलाल फूड में जो पहला बैच था जामिया रशीद का, उसमें यहाँ के असातिज़ा इकराम ने भी खुद से पढ़ा था। तो पहले बैच में हमें भी हलाल फूड बाकायदा पूरा साल पढ़ने का मौका मिला अल्हम्दुलिल्लाह। और इसी तरह से फिर तखस्सुस फिल हदीस जामिया रशीद में जो पहला बैच था उसमें तखस्सुस फिल हदीस पढ़ने का मौका मिला। तो शोबे तखस्सुसात में उस्ताद मोहतरम मुफ्ती अबुल वावा साहब दामत बरकातहू की सरपरस्ती में ये सारे शोबाजात पढ़ने का मौका मिला। और फिर इन्हीं में चूँकि हमारे यहाँ शोबे तखस्सुसात में मुतअद्दिद शोबे हैं, मुतअद्दिद तखस्सुसात हैं, तो उनमें फिर तदरीस के मौके भी मिलते रहे, और मुख्तलिफ मौज़ूआत सब्जेक्ट जो हैं वो वक्तन-फ़वक्तन पढ़ाता रहा हूँ। और उस वक़्त से लेकर आज तक अल्हम्दुलिल्लाह 2008 से लेकर आज 2023 हो गया है, तो अब तक ये सिलसिला जारी है। इसमें जर्नलिज्म की बहुत सारी चीज़ें हैं, इंग्लिश लैंग्वेज से तख़स्सुस से मुताल्लिक़ चीज़ें हैं, ऐसे ही कुछ चीज़ें हलाल फूड से मुताल्लिक़ हैं। फिर अल-ग़ज़्वुल फ़िक्री और जोग्राफ़िया का आपने नाम लिया, जोग्राफ़िया और अल-ग़ज़्वुल फ़िक्री ये मौज़ूआत भी इनकी तदरीस का मौका उस वक़्त से मिल रहा है। दरमियान में कुछ अरसा जब तखस्सुस फिल हदीस के अंदर पढ़ा, तखस्सुस फिल फ़िक़्ह के अंदर फ़िक़्ह और उसूल फ़िक़्ह की तदरीस, इसके अलावा जो दर्स निज़ामी की कुछ किताबें हैं उनकी तदरीस, तो ये सारा सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह उस वक़्त से 2008 से लेकर अब 2023 तक जारी है। बहुत शुक्रिया। जामिअतुर रशीद की खिदमात, जामिअतुर रशीद चूँकि मेरा मादरे इल्मी है अल्हम्दुलिल्लाह, तो जेटीआर मीडिया हाउस और इनकी जो है इस पे तो मुस्तकिल एक पूरे 1 घंटे की अगर गुफ्तगू भी की जाए तो वो भी कम है। उसके लिए इंशाल्लाह कभी मुस्तकिल इंटरव्यू रिकॉर्ड किया जाएगा।